Welcome to today's lecture. So we have finished collisions. Now today we will discuss numerical problems based on collisions. Question number 1 reads, when two spheres of equal masses undergo glancing elastic collision with one of them at rest, after collision they will move opposite to one another in the same direction together at right angles to each other. मैंने कल ग्लांसिंग क्लूजन्स के बारे में बात की थी. वहां पर मैंने लिया था एक पार्टिकल, उसकी मास थी m1. बिफोर collision this particle was moving with velocity u1 along a straight line, and this particle was striking another particle, say of mass m2, which was initially at rest. That means which was at rest. Now after collision, the particle A was moving in this direction with a velocity v1, and particle B, that means target particle, that was moving in this direction with velocity u2. तो ये एंगल वहां मैंने θ1 लिया था, तो ये एंगल मैंने वहां θ2 लिया था. मैंने वहां बताया था for glancing collision this θ1 is equal to 0 degree. उसका मतलब है जो इंसिडेंट पार्टिकल था that continues to move in the same direction, while as मैंने वहां पर दिखाया था आपको, तो θ2 जो था वो था 90. इसका मतलब है अगर इंसिडेंट पार्टिकल यहां से जाएगा in the same direction, जो टारगेट पार्टिकल था that was moving at right angles to this incident particle. That means in case of glancing collision, the two particles which undergo collision, when one of them is at rest, they move perpendicular to each other after collision. We discussed this case yesterday when we were discussing elastic collision in 2 dimensions. This completes this numerical. So option D is correct, at right angles to each other. Now question number 2 reads, two bodies of masses 5 kg and 3 kg moving in the same direction along a same straight line with velocities 5 meters per second and 3 meters per second respectively suffer one-dimensional elastic collision, यानी head-on collision. Then their velocities after collision will be. हमारे पास दो बॉडीज है, एक का मास है 5 kg, दूसरे का मास है 3 kg. जिसका मास 5 kg है वो मूव करता है with a velocity of 5 meters per second, और जिसका मास 3 kg है that moves with a speed of a velocity of 3 meters per second. And these two bodies they suffer one dimensional elastic collision. मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इन दो बॉडीज की velocities after collision. तो यहां पर मैं लिखूंगा m1 is equal to 5 kg, m2 is equal to 3 kg, u1 जो है वो 5 मीटर्स पर सेकंड और u2 जो है वो है 3 मीटर्स पर सेकंड. लेट अस डू दिस न्यूमेरिकल. हमारे पास दो बॉडीज है, से दिस इज बॉडी 1, इसका मास जो है वो मैं m1 रखूंगा, दैट m1 इज इक्वल टू 5 kg. दिस बॉडी इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ u1 वेलोसिटी लेंगे और वो u1 है 5 मीटर्स पर सेकंड. यहां पर मेरी दूसरी बॉडी है, इसका मास m2 है, दैट इज इक्वल टू 3 kg, एंड दिस बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर्स पर सेकंड बिफोर collision. बिफोर collision इसकी वेलोसिटी जो है वो है 5 मीटर्स पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी जो है वो है 3 मीटर्स पर सेकंड. आफ्टर सम टाइम these two bodies they collide with each other. Then after collision, suppose body of mass m1 this moves with velocity v1, and body of mass m2 this moves with a velocity of v2 after collision. अब हमने v1 निकालना है और v2 निकालना है, यानी आफ्टर collision जो इन बॉडीज की वेलोसिटीज है हमें वो निकालनी है. हम यहां लिखेंगे m1 is equal to 5 kg, u1 m2 is equal to 3 kg, u1 is equal to 5 meters per second. हमारा जो u2 है वो है 3 meters per second. मुझे क्या निकालना है? मुझे v1 निकालना है और v2 निकालना है, यानी मुझे निकालना है velocities of the two bodies after collision. बेटा मैंने फार्मूला निकाली है, आफ्टर एक्सप्रेशन मैंने निकाला था velocities of two bodies after collision. तो मेरे पास v1 के लिए फार्मूला था m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1
plus twice m2 divided by shabash m1 plus m2 into u2. This was the formula for this is the formula for velocity of body, first velocity of body of mass m1 after collision, यानी फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी है v1 उसके लिए ये फार्मूला है. v1 is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1 plus twice m2 divided by m1 plus m2 into u2. Let us substitute the values. This is v1 is equal to 5 minus 3 divided by 5 plus 3 into 5 plus twice m2, that means 2 into 3 divided by 5 plus 3 into u2. u2 is 3. ये v1 बनेगा हमें 2 divided by 8 into 5 plus 2 3s are 6 divided by 8 into 3. ये बनेगा हमें 2 1s are 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 4s are 8. Now this is v1 is equal to 5 by 4 plus 9 by 4. This v1 will be equal to 14 by 4. तो 14 को हम डिवाइड करेंगे 4 से. This is 4 3s are 12. यहाँ से हमें 2 आए, यहाँ से पॉइंट आया. This is 4 5s are 20. So v1 जो हमारा निकला, v1 निकला हमारा 3.5 मीटर्स पर सेकंड. यानी जो बॉडी, जिस बॉडी का मास m1 है उसकी स्पीड आफ्टर कोलिजन मुझे निकल गई v1 is equal to 3.5 मीटर्स पर सेकंड सिंपली बाय यूजिंग दिस फार्मूला. तो अब v2 में मैंने वहां बताया था आपको, v2 में ये जो है ना ये इक्वेशन, इसमें जो दिस वैल्यूज जो होते हैं ये इंटरचेंज होते हैं. तो v2 किसके बराबर होगा? वो होगा m2 minus m1 divided by m1 plus m2 into u2, शाबाश, plus twice m1 divided by m1 plus m2 into u1. चूंकि v2 की जब हम वेलोसिटी निकालेंगे सेकंड बॉडी की, उस वक्त यहां पर जो है ना m2 और m1 को हम इंटरचेंज करेंगे और u1 और u2 को इंटरचेंज करेंगे, वैल्यू लगा देंगे. दिस इज v2 is equal to 3 minus 5 divided by 8, 3 minus 5 divided by 8 into u2. What is my u2? u2 is 3 plus twice m1, यानी twice 2 into 5 divided by 8 into u1. u1 is 5. u1 is 5. ये बनेगा v2 is equal to minus 2 into 3 divided by 8. यहां पर बनेगा 10 divided by 8 into 5. अब आगे जाएंगे. दिस इज v2 is equal to minus 6 by 8 plus 50 by 8. 10 5 हो गया 50. दिस इज 50 by 8. ये निकलेगा मेरा v2 is equal to 50 में से 6 घटाएंगे. दिस इज 44 divided by 8. तो अब इसको हम करेंगे 8 5s are 40, पॉइंट आएगा 8 5s are 40. तो आपका v2 जो होगा वो आएगा 5.5 मीटर्स पर सेकंड. तो v1 है वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास m1 जो है दैट इज वो कितना है 3.5 मीटर्स पर सेकंड. जो दूसरी बॉडी है जिसका मास 3 kg है उसकी वेलोसिटी जो निकली वो निकली 5.5 मीटर्स पर सेकंड. दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल. Two solid rubber balls A and B having masses 200 gram and 400 gram respectively are moving in opposite directions with velocity of A equal to 0.3 meters per second. After collision, the two bodies come to rest. Then the velocity of B is. देखिए जी, हमारे पास दो solid rubber balls हैं, एक है A और दूसरी है B. जो A वाली बॉल है उसका जो मास है वो है 200 ग्राम्स, जो B वाला है उसका जो मास है वो है 400 ग्राम्स. ये दोनों रबर बॉल्स जो है दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. वन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड अनदर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. उसके बाद क्या है, जो रबर बॉल A है दैट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 0.3 मीटर्स पर सेकंड. अब यही क्वेश्चन कहता है आफ्टर कोलिजन द टू बॉल्स कम टू रेस्ट. आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल्स जो है दे कम टू रेस्ट. अब हमें क्या बताना है, देन द वेलोसिटी ऑफ B इज, हमें बॉडी B की वेलोसिटी निकालनी है. हम m1 लिखेंगे. m1 इज इक्वल टू 200 ग्राम्स, m2 इज इक्वल टू 400 ग्राम्स
u1 जो है, u1 हमारा जो है वो है 0.3 मीटर्स पर सेकंड, हमें u2 निकालना है। लेट अस डू दिस न्यूमेरिकल। यहां पर एक रबर बॉल है, इसका नाम A रखा है इसने, इसका मास कितना है, शाबाश, m1 इसका मास लिखेंगे हम, वो कितना है 200 ग्राम्स। ये इस डायरेक्शन में चलती है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। यहां पर दूसरी बॉल है, दूसरी रबर बॉल, इसका मास मैं m2 रखूंगा, इसका कितना है 400 ग्राम्स। दिस body B is moving in this direction because these two bodies they are moving in opposite directions। जो बॉडी A है इसकी जो वेलोसिटी है वो दी गई है वहां से 0.3 मीटर्स पर सेकंड, और जो बॉडी B है इसकी जो स्पीड है वो क्या है u2, हमें यही u2 निकालना है। लेकिन हमारे पास कंडीशन दी गई है कि आफ्टर कोलिजन दीज टू बॉडीज दे कम टू रेस्ट। दैट मींस जो v1 होगा वो भी 0 होगा, जो v2 होगा वो भी 0 होगा। हम लिखेंगे m1 इज इक्वल टू 200 ग्राम्स, वो होगा 200 इंटू 10 रेज टू पावर 3 kgs, वो होगा सीधे हमारा 10 रेज टू पावर -3 kgs, वो होगा सीधे हमारे पास 0.2 kgs। That will be equal to 0.2 kgs। चूंकि हमें पता है 1000 grams is equal to 1 kilogram, 1 gram is equal to 1 divided by 1000 kg, ठीक है ना। तो हमारा निकला वो 0.2 kg। तो m2 जो है, m2 है 400 grams, वो सिंपली होगा 0.4 kg। अब u1 हमारे पास दिया गया है कितना है बेटा 0.3 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। अब u2 जो है हमें वो निकालना है, ठीक है। v1 जो है, v1 है 0, v2 जो है वो है 0। क्यों? बिकॉज दीज बॉडीज कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, दे कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन जो A की वेलोसिटी है वो v1 हम मानेंगे, B की जो है वो v2 मानेंगे, वो दोनों 0 है। नाउ सी बेटा, नाउ चूंकि ये कोलिजन जो है ये इलास्टिक कोलिजन है, तो लेट अस अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाउ एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन वो होगा बराबर टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। चूंकि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी 0 है, तो आफ्टर कोलिजन जो हमारा टोटल मोमेंटम होगा वो होगा 0। तो हम ऐसे लिखेंगे एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम, दिस इज m1 u1, ठीक है। यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा प्लस m2 इंटू माइनस u2। जरा बेटा माइनस u2 मैंने क्यों लिखा, बिकॉज दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। वैल्यू देंगे, m1 कितना है बेटा, शाबाश, m1 कितना है 0.2 इंटू u1 कितना है 0.3, प्लस माइनस हो गया माइनस, दिस इज माइनस, m2 कितना है 0.4 इंटू है u2 इज इक्वल टू m1 इंटू v1 0 है प्लस m2 इंटू v2 0 है। चूंकि आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज जो है दे कम टू रेस्ट। अब ये चीज जो है ये 0 बन जाएगा, दिस इज 0.60 माइनस 0.4 u2 इज इक्वल टू 0। This is 0.4 u2 is equal to minus times 0.60, माइनस और माइनस कैंसल, तो हमें यहां u2 निकलेगा 0.60 डिवाइडेड बाय 0.4, दिस u2 comes to be 0.15 meters per second। Simply we completed this numerical। यहां पर हमने क्या किया, सिंपली we applied law of conservation of linear momentum। चूंकि बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो एक की वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे, दूसरी की वेलोसिटी क्या लेंगे, नेगेटिव। आफ्टर कोलिजन जो आपका मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम वो 0 है, चूंकि बॉडीज जो है आफ्टर कोलिजन दे आर एट रेस्ट। दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 4 रीड्स, a gun fires a bullet of mass 50 grams। एक गन है, इस गन से हमने ब्लड को फायर किया जिसका मास कितना है 50 ग्राम्स,
with a velocity of 30 meters per second. जैसे हम गन से ब्लड को फायर करेंगे, ब्लड बाहर जाएगा विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड. एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने रिकॉइलिंग ऑफ गन सीखा है. रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या कहता है? जैसे ही हम ब्लड फायर करेंगे तो गन जो है दिस कम्स बैकवर्ड्स, दिस कम्स बैकवर्ड्स, this comes backwards in order to preserve the linear momentum. This comes backwards in order to preserve the law of conservation of linear momentum. The gun recoils backwards. ठीक है ना? तो वही कहता है, because of this the gun is pushed back with a velocity of 1 meters per second. यानी जो recoil velocity of gun है वो वहीं से दी गई है. कितनी है? शाबाश, 1 meters per second. The mass of the gun is 15 kg, 30 kg, 15 kg, 30 kg, 1.5 kg, 20 kg. ठीक है? तो बेटा यहां पर क्या करेंगे हम? पहले मास ऑफ ब्लड लिखेंगे mb. mb है 50 ग्राम्स. vb velocity of blood that is 30 meters per second. vg velocity of gun जो है that is 1 meters per second. हमें क्या निकालना है? मास ऑफ द गन, यानी मास ऑफ द गन निकालना है. Let us do this numerical. यहां पर ये हमारा गन है भाई. This is the barrel of the gun. ये गन है भाई हमारा. इस गन का जो मास है वो निकालना हमें. सपोज मास ऑफ गन इज m. कैपिटल M मैंने लिया मास ऑफ गन जो मुझे निकालना है. अब जब इस गन को मैंने ट्रिगर दबाया तो इस गन से बाहर एक ब्लड आया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. दिस इज ब्लड. इस ब्लड का मास कितना बेटा? शाबाश, mb. मास ऑफ ब्लड कितना है? 50 ग्राम्स. ये जो ब्लड है ये किस वेलोसिटी से बाहर आया? 30 मीटर्स पर सेकेंड. जैसे ही ये ब्लड बाहर आया, ये गन जो होगा ये रिकॉइल कर रहा है, ये बैकवर्ड्स आ रहा है. ठीक है ना? इसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी है उसको लिखना वेलोसिटी ऑफ गन. वो कितनी है? 1 मीटर्स पर सेकेंड. हमें क्या निकालना है? मास ऑफ गन. देखो बच्चों, मास ऑफ ब्लड mb में नाम रखूंगा, वो है 50 ग्राम्स. वो होगा 50 इंटू 10 रेज टू पावर -3 kg. वो किसके बराबर होगा? वो होगा 50 डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है? ये और ये खत्म. वो होगा 0.05 ग्राम्स, सॉरी 0.05 kg. तो मास ऑफ ब्लड जो है वो है 0.05 किलोग्राम्स. वेलोसिटी ऑफ ब्लड जो है वो है 30 मीटर्स पर सेकंड, वहीं से दी गई है. वेलोसिटी ऑफ गन जो है दैट इज 1 मीटर्स पर सेकंड. अब हमें क्या निकालना बेटा? मास ऑफ गन. यहां पर भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे. देखो, बिफोर फायरिंग जो हमारा गन और ब्लड है ये रेस्ट में है. इसका मतलब है बिफोर फायरिंग the gun is at rest, the blood is at rest. Therefore the total linear momentum of this system, blood plus gun, यहाँ सिस्टम जो है इट्स अ 2 पार्टिकल सिस्टम. गन प्लस ब्लड, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग वो होगा 0. तो टोटल एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग विल बी इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग. एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा हमारा? टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ब्लड प्लस गन आफ्टर फायरिंग is equal to total linear momentum of system before firing. चूंकि गन भी रेस्ट में है, ब्लड भी रेस्ट में, तो बिफोर फायरिंग इसका मोमेंटम जो होगा वो होगा 0. Now total linear momentum of system before firing, that will be equal to momentum of gun plus momentum of blood. That will be equal to m into v, capital M into Vg, velocity of gun, plus mass of blood, that means mb into velocity of blood, that is Vb. mb into Vb is equal to, shabash, m into 0, because before firing gun is at rest, Vg is 0, plus mb into 0, because before firing blood is also at rest. देखो बच्चों, मास ऑफ गन कितना है बेटा? 1.
मास ऑफ गन निकालना है, दिस इज m इनटू मास ऑफ गन जो है दैट्स 1 मीटर पर सेकंड, vg के बदले 1 लिखूंगा मैं, प्लस मास ऑफ ब्लड जो है, व्हाट इज मास ऑफ ब्लड, दैट इज 30 दैट इज 0.05 इनटू, तो ब्लड इनटू जो ब्लड होगा, ब्लड की जो वेलोसिटी है वो है 30 मीटर्स पर सेकंड। हम ऐसे भी ले सकते हैं, हम इसको -30 भी ले सकते हैं। क्यों लेंगे -30? क्योंकि गन एक साइड में जा रहा है, वो दूसरे साइड में जा रहा है। या यहां पर क्या काम करेंगे, जो गन की वेलोसिटी है वो -1 लेंगे और इसकी जो है पॉजिटिव लेंगे। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या लेंगे, नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। ये है -m, उसके बाद प्लस 0.05 को 30 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज 0, 3 5s are 15, 3 zeros are 0, डेसिमल 2 के बाद दिस इज 1.5 इज इक्वल टू 0। तो 1.5 वहां ले लो, दिस इज माइनस टाइम्स m इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1.5, माइनस और माइनस कैंसल, m निकला आपका 1.5 kg, यानी जो मास ऑफ गन है दैट इज 1.5 kg, मास ऑफ गन इज 1.5 kg। सिंपली मैंने यहां लगाया टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 रीड्स two masses 0.25 kg each। हमारे पास दो मासेस है, यानी दो बॉडीज है जिनकी इक्वल मासेस है 0.5 kgs, मूव टुवर्ड्स ईच अदर। टुवर्ड्स ईच अदर मींस they are moving in opposite direction. Towards each other means they are moving in opposite direction. With speed 3 meters per second and 1 meters per second. एक की स्पीड है 3 meters per second, दूसरी की क्या है 1 meters per second. Collide, फिर क्या करते हैं, collide and stick together. जब ये collide होगी और stick होंगे, stick together, in that case the collision will be perfectly inelastic. Perfectly inelastic collision वो है जिसमें after collision the two bodies they stick together and then move with a common velocity. तो find the final velocity, हमें वही final velocity निकालनी है, after collision जो velocity होगी हमें वो निकालनी है। Let us do this numerical. देखो बच्चों, suppose यहां पर हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास है m1। क्वेश्चन कहता है सपोज दिस बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इसकी जो स्पीड है वो मैं लूंगा u1। सपोज यहां पर दूसरी बॉडी है, इसकी जो मास है वो है m2। सपोज दिस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ u2। नाउ दीस टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। आफ्टर कोलिजन दीस टू बॉडीज स्टिक टुगेदर। जब ये स्टिक हो जाएंगे, व्हेन दे विल स्टिक टुगेदर, इनका जो मास है वो ऐड हो जाएगा, तो मास नया जो बन गया वो बन गया m1 प्लस m2। तो सपोज अब now when they will stick together, suppose after that sticking together, suppose they move with a common velocity, that velocity is v। मुझे यही v निकालनी है। पहले मैं यहां लिखूंगा, हमारा जो m1 है वो भी है 0.5, क्या है 0.25 kg। हमारा जो m2 है वो भी है 0.25 kg, यानी हमारा जो m1 है वो बराबर है किसको, m2 को। सपोज इन दोनों को मैं क्या रखूंगा नाम, m से। हमारा जो u1 है, u1 हमारा है 3 meters per second, u2 जो हमारा है दैट इज 1 meter per second। अब हमें क्या निकालना है, v। Since the collision is inelastic, therefore after collision these two bodies will stick together. Therefore after collision their mass will be m1 plus m2 and they will move with a common velocity. What is that velocity? v। तो मुझे यही v निकालनी है, ठीक है ना। यहां पर भी मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाऊंगा, तो क्या होगा वो, शाबाश, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, वेरी गुड, m2 u2, दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा बच्चा, शाबाश, दिस विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। ठीक है, चलिए m1 के बदले में m लिखूंगा, सिंपली m। तो यह है m इंटू, यहां देखो u1 के बदले में 3 लिखूंगा, प्लस m2 के बदले में m लिखूंगा,
u1 के बदले में -1 लिखूंगा। -1 क्यों लिखा? क्योंकि ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले ली और वापस डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव। इज इक्वल टू m1 के बदले m प्लस m2 के बदले m इंटू है v। तो बच्चों ये बन गया 3m माइनस m, 3m प्लस माइनस हो गया माइनस m इज इक्वल टू 2m इंटू v। 3m में से एक m घटाओ, ये बन गया 2m इज इक्वल टू 2mv। 2m और 2m कैंसल, तो आपका v जो है वो निकला 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्लूजन जो है वो इनइलास्टिक, तो बॉडी जो है वो स्टिक हो जाते हैं, तो फिर इनका मास जो है वो ऐड होता है आफ्टर क्लूजन। ठीक है, एंड दे मूव विद द कॉमन वेलोसिटी। वो कॉमन वेलोसिटी मैंने यहां निकाली, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इट इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड। ए पार्टिकल ऑफ मास m moving with a velocity v makes a head-on elastic collision with another particle of same mass initially at rest. The velocity of the first particle after collision will be। देखो बेटा क्या कहता है, यहां पर मेरा एक पार्टिकल है, इसका मास m है, दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v। नाउ ये पार्टिकल है, दिस पार्टिकल कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास विच इज एट रेस्ट, जो रेस्ट पे है, यानी जिसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 0। ठीक है, u1 जो आपका है, u1 आपका v है, u1 जो आपका है दैट्स v। u2 जो आपका है, u2 जो है आपका वो 0। इसके बाद आफ्टर कोलिजन, अब दिस इज बिफोर कोलिजन, अब यहां आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन सपोज दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज सेकंड पार्टिकल। ये फर्स्ट पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल है। बच्चा यहां देखो, दिस इज सेकंड पार्टिकल। अब हमने बताना है जो फर्स्ट पार्टिकल है इसकी स्पीड क्या होगी आफ्टर कोलिजन। यहां देखो, क्योंकि कोलिजन जो है वो हेड ऑन कोलिजन है, हमें पता है अगर हमारे पास दो बॉडीज होंगी, अगर हमारे पास दो बॉडीज होंगी जिनका मास सेम होगा, अगर वो बॉडीज आपस में हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होगा उनका, तो आफ्टर कोलिजन वो बॉडीज जो है वो अपनी वेलोसिटीज जो है वो इंटरचेंज करते हैं। When we have two particles of same mass that are undergoing one dimensional elastic collision, or we can say head-on elastic collision, what happens? Then after collision their velocities get interchanged। यानी after collision जो first particle की जो velocity होगी, इसको होगी वो velocity जो before collision second particle को होगी, second particle को after collision वो velocity होगी जो first particle को होगी after before collision। तो after collision बिफोर कोलिजन सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? 0। तो आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या होगी? 0। सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? v। देयरफॉर हमें क्या बताना है? हमें बताना है द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन विल बी, दैट विल बी 0 because the velocities will get interchanged after collision। This completes question number 6। Question number 7 reads, a particle of mass m is moving with a horizontal speed of 6 meters per second। यहां पर हमारे पास एक पार्टिकल है, डायग्राम है, दिस पार्टिकल, दिस हैज अ मास m and it is moving with a speed of 6 meters per second in horizontal direction। ठीक है, तो u1 हमारा दिया गया है 6 meters per second as shown in figure। अब ये जो हमारा पार्टिकल है, it strikes another particle of mass m2, ठीक है ना, जिसकी स्पीड कितनी है? 4 meters per second। If m is less than capital M, अगर हमारा स्मॉल m जो है फर्स्ट पार्टिकल की मास जो है इट इज लेस देन स्मॉल m, इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द सेकंड बॉडी, देन द स्पीड ऑफ द लाइटर पार्टिकल, जो ये लाइटर पार्टिकल है इसकी स्पीड हमें बतानी है आफ्टर कोलिजन, इसकी स्पीड और इसकी डायरेक्शन। और कोलिजन जो यहां पर है, दिस इज वन डायमेंशनल कोलिजन बिकॉज़ दे आर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। इसका मास जो है वो है m,
ठीक है, इट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ, वो कितना इसका स्पीड है शाबाश, हाँ 6 meters per second. This is moving along horizontal direction in this direction. ये यहां पर दूसरे पार्टिकल के साथ कोइंसाइड करता है जिसकी मास m है, जो किस वेलोसिटी से मूव करता है, किस स्पीड, u2 जो है वो 4 meters per second. अब आफ्टर कोलिजन सपोज v1 जो है that is the speed of the lighter particle and v2 जो है that is the speed of the heavier particle. हमें ये lighter particle की स्पीड बढ़ानी है, लेकिन कंडीशन दी गई है m जो है that is very very small as compared to capital M. बेटा सपोज ये m1 है, ये m2 है, तो हमें पता है जो ये लाइटर पार्टिकल होगा आफ्टर कोलिजन जो इसकी स्पीड होगी v1, वो हमें पता है v1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू u1 प्लस ट्वाइस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू u2. ये तो फार्मूला ये लगाएंगे हम. नाउ m1 तो मुझे पता है m1 इज इक्वल टू m स्मॉल m, ठीक है ना. m2 जो है वो मुझे पता है दैट इज इक्वल टू कैपिटल M, ठीक है ना. u1 तो मुझे पता है कितना है बेटा 6 meters per second. u2 तो मेरा पता है दैट इज कितना शाबाश 4 meters per second. इसमें लगा दो बेटा, ये बनेगा v1 इज इक्वल टू, यहां देखो स्मॉल m माइनस कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू u1 दैट इज 6 प्लस 2 into capital M divided by small m plus capital M into u2 u2 कितना है बेटा, u2 है 4 into 4. देखो चूंकि m जो है that is less than capital M जो है ये बहुत छोटा है as compared to capital M. Therefore हम क्या काम करेंगे, ये capital M जो यहां पर है, हम इस small m जो यहां पर है इसको हम neglect करेंगे, neglecting m in above equation. तो हमारा v1 निकलेगा स्पीड ऑफ लाइटर पार्टिकल, क्या निकलेगा माइनस m है ना बेटा डिवाइडेड बाय m, क्योंकि स्मॉल m नेगलेक्ट हुआ, इनटू 6 प्लस 2 कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M इनटू 4. तो बेटा ये v1 निकलेगा हमारा, this m and m goes, this is minus 6 plus 8. This is v1 is equal to 2 meters per second. v1 जो हमारा जो है वो है 2 meters per second. तो इसका मतलब है जो लाइटर पार्टिकल है it will continue to move along the same direction, क्योंकि कोलिजन हेड ऑन है, along the same direction, same straight line with a velocity of 2 meters per second. सिंपली मैंने इस इक्वेशन में जो स्मॉल m है वो नेग्लेक्ट किया और कुछ नहीं किया, बाकी कैलकुलेशन सेम है. दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 8. यहां देखो बेटा, यहां देखो ए शेल, हमारे पास एक शेल है ऑफ मास m, उसका मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी u. इसकी वेलोसिटी क्या है u, v है वेलोसिटी. सडनली ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स. हमारे पास एक शेल है, इट्स मूविंग विद वेलोसिटी v, इट सडनली ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स, 2 pieces. The part having mass m by 4 remains stationary. The part having mass m by 4 remains stationary. दो टुकड़े हो गए. एक टुकड़ा जो है उसका मास कितना है m by 4. ये टुकड़ा जो है it remains stationary. जो दूसरा टुकड़ा होगा, दूसरा पार्ट होगा, हमें उसका वेलोसिटी निकालना है. Let us do this numerical. इसका मास m है and this shell is moving with a velocity v. ठीक है, बिफोर एक्सप्लोजन, फटने से पहले इसका मास क्या है m, तो वेलोसिटी क्या है v. यह है बिफोर एक्सप्लोजन. अब आफ्टर एक्सप्लोजन इसके 2 टुकड़े हो गए. एक टुकड़ा जो है उसका मास जो है वो है m by 4. वो टुकड़ा जो है दैट इज एट रेस्ट, यानी उसकी वेलोसिटी में अगर रखूंगा v1, वो किसके बराबर है 0 के बराबर. अब दूसरा टुकड़ा जो है
पहले हम उसकी मास देखेंगे। उसकी मास होगी m माइनस m बाई 4। क्योंकि एक का मास क्या है, टोटल मास कितना है m, उसका मास कितना है m बाई 4, उसको माइनस करो। दिस इज 4 1 are 4, दिस इज 4m माइनस m डिवाइड बाई 4, दिस इज 3m बाई 4। ये शल जो है, सपोज दिस इज मूविंग विद स्पीड v2, मुझे यही v2 निकालना है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है यहां पर v2, ये v2 जो है, मुझे ये v2 निकालना है। सिंपल, दिस इज आफ्टर एक्सप्लोजन, वो दूसरा जो है दिस इज बिफोर एक्सप्लोजन। सिंपल मैं यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाऊंगा। ठीक है ना, वो क्या बताएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, as per law of conservation of linear momentum, total linear momentum before explosion, वो क्या होगा, बिफोर एक्सप्लोजन मास क्या है m, स्पीड क्या है v, वो होगा mv इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, पहले पार्ट का क्या मास है m बाई 4, तो स्पीड क्या है इसकी 0, क्योंकि ये किस में है, रेस्ट में। दूसरे पार्ट का मास क्या है 3m बाई 4, तो स्पीड क्या ली मैंने v2, ये बनेगा mv इज इक्वल टू, ये 0 बन जाएगा, ये बनेगा 3m बाई 4 इंटू v2, m और m कैंसल, ये बनेगा v इज इक्वल टू 3 बाई 4 इंटू v2, इसको मल्टीप्लाई करो, ये होगा 4v इज इक्वल टू 3v2, तो v2 निकालना है, v2 हो गया हमारा बराबर 4v बाई 3, 4 बाई 3v। सिंपल, टोटल लीनियर मोमेंटम before explosion is equal to total linear momentum after explosion. From this we can calculate v2. We can calculate the velocity of the shell having mass 3m by 4, of the part of the shell having mass 3m by 4. Two equal masses m1 and m2, two equal masses, एक का m1 है दूसरे का m2 है, move along same straight line with velocities 3 meters per second and minus 5 meters per second, collide elastically। देखो बेटा, यहां पर एक बॉडी है, इसका मास जो है वो है m1, इसका स्पीड जो है वो मैं u1 रखूंगा, दैट इज गिवन, वो कितना है बेटा, शाबाश, 3 meters per second। और यहां पर दूसरी बॉडी है, उसका मास m2 है, और उसकी स्पीड जो है ये इस साइड में अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी स्पीड जो है दैट इज u2, वो है बराबर कितनी, -5 meters per second। ये बिफोर कोलिजन है, दिस इज द कंडीशन गिवन बिफोर कोलिजन। और ये भी कंडीशन है कि m1 जो है दैट इज इक्वल टू m2, मासेस सेम है, और कोलिजन क्या है, इलास्टिक। अब आफ्टर कोलिजन मुझे बताना है जो m1 होगा उसकी स्पीड क्या है, जो m2 होगा उसकी स्पीड क्या है। चूंकि पार्टिकल्स जो है, क्योंकि ये दो पार्टिकल्स जो है इनका मास सेम है, और कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। आपको पता है जब दो पार्टिकल्स का जिनका मास सेम होगा, हेड ऑन कोलिजन होगा, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होगा, तो आपको यह भी मालूम है कि आफ्टर कोलिजन दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। यानी m1 जो है इसको बनेगी पार्ट वेलोसिटी ऑफ मास m2, जो m2 है इसको बनेगी वेलोसिटी ऑफ मास m1। तो m1 जो है दैट विल मूव विद a स्पीड ऑफ -5 मीटर पर सेकंड, तो m2 m1 जो है दैट विल मूव विद a स्पीड ऑफ -5 मीटर्स पर सेकंड, और m2 जो है वो किस स्पीड से मूव करेगा, 3 मीटर्स पर सेकंड। तो v1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, शाबाश, v1 जो होगा, v1 होगा -5 meters per second, v2 होगा 3 meters per second, because when two equal mass particles undergo elastic collision, after collision they interchange their velocities. This completes this question. Option D will be the correct option.